مسکان اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ بھائی طارق مسعود کے بیان صرف فنی کیوں ہوتے ہیں اور اس میں اسلام کی دعوت کیوں نہیں ہوتی. تو یار یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز پہ اگری کرتے ہیں کیونکہ ہم نے موسٹلی ان کو دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کلپس ہم نے نہ دیکھی ہو پر وہ اسلام پہ اتنی زیادہ شاید بات نہیں کرتے ہوں گے. اور موسٹلی لوگ کیا اپنے پرسنل سوال ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں, ریلیشن شپس یہ وہ شادی وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے اس پہ زیادہ فوکسڈ ہے اور ان کا جو نیچر ہے نا وہ بھی تھوڑا فن ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے جو بیان جو ہے نا وہ صرف فنی ہی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے یار, ان کی جو ہم نے پچھلی ویڈیوز دیکھی اس میں بھی نا وہ مطلب کیسے جو نارمل لوگوں کی جو پرابلمس ہوتی ہیں نا وہ اس پہ ہی بات کرتے ہیں, بٹ ان کا ایک ایسا انداز ہے نا وہ ہر چیز کو فنی بنا دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آخر میں نا ہمیں سیکھنے کو ہی ملتا ہے. تو شاید اس ویڈیو میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ہی ملے. تو آپ بھی دیکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. اچھا بھائی مفتی صاحب, لوگ آپ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے, آپ ہر وقت بیانات میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. دین کے مٹنے کا غم کا کیا میں دکھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روؤں؟ اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے؟ بالکل نہیں. باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک. اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھ جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے. میں سویڈن میں تھا نا, تو وہاں ایک خاتون آئی, ان کے ہسبینڈ بھی وہ اتنے متاثر تھے, وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بالکل لبرل ہو گئی تھی, الحاد, اور یہ بیان بھی وہ سنیں گے, بالکل الحاد کی طرف جا رہی تھی. وہ سمجھا کے ہم تھک گئے نا اس ماحول میں. یہ ایک کیس نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں. تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کو, سن ہی رہے تھے. تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنے یعنی شکریہ, ایسا لگ رہا تھا ان بیچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں. تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں نا, کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے, کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں, کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی, کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے. میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے, قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے. صحیح بات ہے. ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے. جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے, لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے, الحمدللہ بہت. باقی یہ کہ میں ہنسی مذاق تو بھائی جو اپنا انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا. میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کی, وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں. ہمارا اپنا اسٹائل ہے, اس کا اپنا اسٹائل ہے. اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان جیسا کام کر نہیں سکتے, نہ کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے, بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے. ان کے بیانات میں اتنا مذاق نہیں ہوتا, وہ رلاتے بھی ہیں, مزاح بھی کرتے ہیں لیکن رلاتے زیادہ ہیں. اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو 2000 سے پہلے کے, ان میں رونا زیادہ تھا. جب سے میری شادیاں ہوئی ہیں نا, تو جتنا رونا, آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا. ہوا یہ کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا, یعنی اللہ معاف فرمائے, لگ نہیں رہا ہے, تو میں نے کہا یہاں بھی روں گا, گھر میں بھی روں گا, تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. کہتے ہو سب کو دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے. اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا. میں نے کہا یار بیانات میں نہ رلاؤ نہیں, کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ. ہاں صحیح بات ہے یار, گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں, مرد بھی رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں, تو مسجد میں بھی رلاؤ گے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں تو ایسی ہی باتیں, اصل ہے مزاج. ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری جو مدرسے میں استاذ ہیں, ان کے جو ہماری دوستی ہیں, یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, جیسے ہم ادھر ہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی. مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے, یہ کبھی سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتے. ہاں وہ ایک دم میں آؤں کہ ایک بات کان کھول کے یاد رکھو. مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں, ایک بات کیوں بھائی, جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سنو. فلاں نے میں فرمایا, پھر یوں فرمایا, تو یوں فرمایا. تو ابھی میں کچھ سناؤں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے نا, وہ پھر غلط ہو جائے گا. ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں, راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم شب میں بلبل, عمر بھر ہم دل میں بلبل, شب میں پروانہ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں, لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج,
तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाले। मैं नहीं कह रहा कि मैं तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाला हूँ, नेक हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं हूँ ठीक है ना, वो मैं क्या हूँ वो तो मैं जानूँ, अल्लाह जाने, लेकिन रोने की जो असल मौके है ना वो तन्हाई में अल्लाह के सामने है, वो हंसने का मौका नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खुश मिजाज थे और रातों को कैसे रोते थे अल्लाह के सामने। अम्मी आयशा फरमाती हैं हांडी के उबलने की आवाज आती थी, लेकिन दिन में कैसे खुश मिजाज। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं नबी से जब भी मिला हूं हमेशा आपने मुझे जब भी देखा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे देख के मुस्कुराए ना हो आप। हाँ। अब अगर कोई मजहबी स्कॉलर ऐसा बन जाए ना यूं करके वो बगैर दाढ़ी वाला आ रहा है ये जहन्नम में जाएगा, वो सूदखोर आ रहा है लानती आ रहा है, गुस्से वाले वो बगैर दुपट्टे के लेडीज आ रही है बेगैरत। क्या मस्त इनसे नहीं वो एक्टिंग अच्छी की है इन्होंने। तो इससे क्या होगा, वो दुपट्टा पहन लेगी नहीं है होगा भाई? और अगेंस्ट हो जाएगी। वहीं से भाग जाएगी, बोले वो वहीं से टाटा करके मैं किसी पादरी के पास जाऊंगी, मौलवी के पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ये नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है, थोड़ा सा मजबूरी है, लोगों को दीन सिखाना है तो थोड़ा सा खुश मिजाज होना, हमें इतना हूँ नहीं लेकिन होना चाहिए इंसान। अच्छा मेरे भाई दुनिया आखिरत की 100% कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी, लेकिन आज जो जितना मजहब से दूर होता है दुनियावी एतबार से इतना कामयाब होता है भाई, वो अय्याशी को कामयाबी नहीं कहते, इस पर तो कई बार बयान कर चुका हूँ मैं। अय्याशी अलग चीज़ है, कामयाबी अलग चीज़ है। अय्याशी तो माशाल्लाह मिसाल नहीं देना चाहता मैं, मेरी वालदा कहती हैं तुम्हारी दीनदारी में मैयार बहुत ऊंचा है, आज के दौर में इतनी दीनदार लड़की नहीं मिलेगी। मिलेगी भाई, मिलेगी। दीनदार इनका लड़कियां भी बहुत फेवरेट हैं टॉपिक है मार्केट में। शादी। बहुत लड़कियां हैं। गुनाह छोड़ने के लिए इसके असबाब भी छोड़ने पड़ते हैं, तो अगर कोई शख्स मोबाइल पर बदनजरी करता हो तो वह कैसे मोबाइल छोड़े, जबकि इसकी पढ़ाई से मुताल्लिक हाँ कुछ काम ऐसे हैं जो अब मुआशरे का हिस्सा बन गए, उनको छोड़ नहीं सकते आप। तो उसका फिर तरीका यही है कि जब कंपलसरी है फोन। बदनजरी हो तो सदका करें, अपने आप को सज़ा दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो गुनाह छूट जाएगा। वैसे भी मोबाइल छोड़ने में ये होगा कि आप अगर छोड़ देंगे ना तो जब बदनजरी का दिल चाहेगा तो दोबारा खरीद लेंगे, सही है ना मतलब ये कि दुनिया से तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, बात सही तो उसका हल फिर यही है कि भाई आप जब उस पर कोई उल्टी चीज़ देखें अपने तौबा भी करें और अपने आप को सज़ा भी दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब चाहेंगे ना तो ये बुराई छूट जाती है। अच्छा भाई, अबे कराची की रोडों पे सफ़र जो करता है उसको तो ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ में आता है ना। आप बताओ कराची में कोई एक माई का लाल ऐसा है जिसने हमेशा पूरा रोड पे ही सफ़र किया हो, कच्चे में उतारना पड़ता है आपको, ऐसा। खड्डा आ रहा है आगे, गटर आ रहा है। अभी मैं न्यू कराची के रास्ते से जा रहा था तो वो एक इतना बड़ा गटर खुला हुआ है ना, उससे ऐसी नहरें बह रही है ना गटर लाइनों की। न्यू कराची में देखा है आप लोगों ने आगे जाके? मैंने अपने जो मेरे गार्ड थे उनसे मैंने बोला कि यार यहाँ गाड़ी रोकते हैं, अभी हमने स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग बनाए, पेरिस के बनाए, जर्मनी की आबशारें, मैंने कहा बेहतरीन हो जाएगा यार, यहाँ का व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आप जाके देखो मेरे मशवरे पर, जब आप न्यू कराची वाले रास्ते से गुलशन मेमार जाते हो ना, रास्ते में पूरा जो सवात का दरिया है ना मजाक नहीं कर रहा मैं, आप समझो ये दरिया के इतना पानी गटरों से उबल रहा है। छी यार, आज सुबह उसमें एक ट्रक उल्टा हुआ था ना अच्छा मैं रोजाना देखते थे इसमें ट्रक उलट क्यों नहीं रहे, इतने बड़े बड़े कंटेनर की, आप उसकी हौसले को दाद दो ड्राइवरों के कि इतने बड़े बड़े कंटेनर, वो भी हौसला गोरा होगा वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा भाई, मैं कंटेनर उड़ जाएगा, लेकिन रिस्क लेते हैं हमारे ड्राइवर, सच में हैवी ड्राइवर है, रिस्क लेते हैं यार, गुजार के देखो यार, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ऐसे ऐसे यार मैं तो यानी वो भाई मुझे डर लग रहा है ये कंटेनर उल्टेगा तो 25-30 आदमी यहाँ हलाक हो जाएंगे। वो लोग भी रिस्क ले रहे हैं, वो नीचे से आराम से गुजर रहे हैं। नहीं यार ठीक करवाओ उसको। ना उनको डर लग रहा है ना कंटेनर वाले को डर लग रहा है, तो मैं हैरान कि यार ये उल्टा, आज देखा उल्टा हुआ है एक फंसा हुआ है वहां पे, आधा यूं हुआ है 45 के जाविये पे ना, गिरा भी नहीं है और अल्लाह ने ईमान की बरकत से उसको बचा लिया है ड्राइवर पता नहीं कहां से उतरा होगा, देखा था ना, ये भी मेरे साथ था, इससे पूछ लें, यूं ट्रक यूं हुआ है। फिर हमने कहा अब तो रास्ता ही बंद हो गया, कम से कम एक आबशार के बीच में से हम गाड़ी लेके जाया करते थे, अब हम गलियों में घुसे हैं तो गलियों में घुस घुस के आगे जाके गए तो तंबू लगा हुआ है, क्योंकि कोई किसी को तमीज ही नहीं है, शादी करना है अकीका करना है, रोड ब्लॉक करके तंबू लगा के खड़े हो जाओ। गलत है भाई ये बात एकदम। एक तरफ हम पेरिस से होके आ रहे हैं
वो खूबसूरत मनाजिर, ट्रैफिक, तमीज, अपने कराची में आए तो आबशारों के स्टाइल क्या हो गए। तो हम इतनी मुश्किल से गाड़ी घुमा घुमा के गलियों में गया, वो तंबू लगाया हुआ है आगे, Civic पता नहीं sense. क्या हो रहा है, कीका हो रहा है, Hero. किसी की शादी हो रही है, किसी के बाप की शादी हो रही है, क्या हो रहा है, अबे कोई तमीज नहीं है यार, ये रोड पे तुमने लगा। फिर वहां से निकले, फिर घुमा घुमा के इतनी मुसीबत से यूं यूं करके क्लास में 15 या 20 मिनट में रखा ले लेट पहुंचाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार यहाँ एक व्लॉग बनाते हैं हम, कि आइए हम पहले, मैं उसमें ये कहूँगा आइए आपने पेरिस की आबशारें देखी, अभी तो वैसे दिखाई नहीं है, गर्मियों में जाएंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह, व्लॉग्स भी देखना और है यार स्विट्जरलैंड में, और कमाल आइए की हम vlogging आपको करनी कराची है, खूबसूरत खूबसूरत आबशार, और फिर यूं यूं कर दो आप, हाँ गटर के ना उबल उबल के गटर एक्सपोज्ड इतने उबल रहे हैं ना लाइन से। छी यार। और ये जो हमारा शागिर्द है ना, ये जो गार्ड है, ये इसका घर है उस तरफ, जब अभी बारिशें नहीं हो रही थी, इसने क्या किया है बेचारा, अगले दिन मेरे पास आया, कह रहा है मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक पानी में रहे, और 3 बूढ़े, एक बेचारी बूढ़ी औरत और 2 बूढ़े आदमी पानी में बह रहे हैं, खैर बचा लिया उनको जिंदा। बहुत गलत हो गया भाई। तो ये हालात हैं यार, आप खुद अंदाजा लगाओ, अल्लाह आप शारे हैं। तो शुक्र है खुशी इस पे हुई कि वो मुझे इस पे नहीं हुई थी कि गिर गए हैं, गम इस खुशी बचने की हुई, जब उन्होंने बताया ना उन बूढ़ों को हमने निकाल बचा लिया। तो ये हालात हैं, ये बारिश के बगैर ये आप शारे हैं, बारिश हो तो हुस्न के मनाजिर, वो तो ऐसा मजा होता है कि भाई वो तो स्विट्जरलैंड तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में, आओ कराची, ये हुस्न है हमारे कराची का। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई यार, ये क्या चल रहा था, बस बात को ख़त्म करता हूँ मैं, बहुत हो गया। हाँ तो मेरे भाई, मैं ये बात कर रहा था कि मज़हब पे चलोगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको एक ट्रैक नज़र आएगा, ये सीधा रास्ता है, तो उसमें अगर जैसे कराची की यहाँ मिसाल आई थी कि भाई थोड़ा सा आगे गटर मटर आ भी गया तो उठा के फिर भी रोड पे ही आना है ना, ये थोड़ी कि उसी में नहर में ही बह जाएगा जाके वो। सही बात है। तो अगर थोड़ा बहुत इंसान से गलती हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, अब्बा के सामने कभी ऊंची आवाज से बात हो गई, कभी बदतमीजी हो गई, तो भाई तौबा का दरवाजा खुला हुआ। अच्छा आखिरी बात, अब्बा से भी माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? तो अगर कभी कभार हो जाए तो अब्बा से भी मांगे, अगर आपकी आदत ही हो गई है तो सिर्फ अल्लाह से ही मांग लें, क्योंकि बार बार माफी मांगते हुए भी वो शर्म की बात नहीं है। अच्छा ये वो अब्बा भी इससे परेशान हो जाएगा कि बस कर यार कोई और काम कर दो। तो फिर अल्लाह से मांगो और अपने ऊपर कोई जुर्माना रख लो, हमेशा गलती करता है, हमेशा आ जाता है माफी। तो ये एक उसूल और ज़ाब्ता शरीयत ने, और बहुत सारे इसमें अहकाम हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है, समझते हो? किसी इस्लाम को छोड़ोगे कन्फ्यूजन ही, सारी जिंदगी ठोकरें ही खाते रहोगे, उसी में मर जाओगे। तो ये है हिसाब किताब। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और मोटिवेशन हमें इस्लाम से लेने की तौफीक अता फरमाए, जो मैंने असल बयान शुरू किया था। और वो जो फिर एकदम आता ना, ये एकदम करके यूं, एक बात हमेशा याद रखना, बोले भाई तू अगर शरीयत के मुताबिक कर तो कुछ और काम कर ले, तू जाके इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा है तो एक नहीं तेरी 6 बातें याद रखेंगे हम, ठीक है ना? इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहा तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो बैठ। यार हमें तो ना ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लगता है, भले लोग इनको कुछ भी कहें। और मुझे लगता है कि यार आपको है ना इंसान, वैसे जैसे इन्होंने कहा कि आप घर पे भी इतने सीरियस रहते हो, हर जगह आपका ऑफिस वगैरह इतना सीरियस, फिर जब आप इनके बयान सुनते हो ना यार, मैं मतलब जब से हमने सुनने स्टार्ट किया हम काफ़ी लाइट हार्टेड हो जाते हैं, हमें जो है ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लग जाती है। हालांकि हम सुन भी बयान ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ एंटरटेनमेंट का सुन रहे हैं। और यही बात वही समझा रहे थे कि यार मैं ऐसे करके, ऐसे स्ट्रिक होकर ऐसे करके बात करूँ, तो यार आप भी थोड़े वो हो जाओगे कि यार एक बंदा थोड़ा प्रेशर में आता है। और वही बात आप थोड़ा मजाक के वे में किसी को बोलते हो तो इंसान को समझ आ जाती है। सच में यार, इन्होंने इस चीज़ का शुरू में एक एग्जांपल दिया था, कैसे एक जो फैमिली के बारे में बता रहे थे, उनकी पूरी लाइफ बदल दी थी। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो उनको बयान ही नहीं कर पा रहे थे कि यार आपकी बातों का, आपके बयान का हम पे क्या असर पड़ा है। और जहाँ तक इन्होंने ना एक बात मुझे और अच्छी लगी थी जो उन्होंने बताई थी कि यार कोई इंसान है ना, वो कितना खुश है कितना दुखी है ना, तुम उसके चेहरे से देख के नहीं बता सकते। जैसे कि अपने मतलब अल्लाह के टुवर्ड्स जो एक वो करते ना कि हाँ यार अगर इस्लाम है तो तुम उनकी बात मानो। अब जैसे दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो कुछ भी बकवास करते हैं, बट इनकी मोटिवेशन भाई सबसे ज़्यादा अच्छी है। जब से मैंने इनको सुनना चालू किया है ना, मुझे भी एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा। जब मेरी पहली वीडियो थी जहाँ, तो मुझे शुरू में से कुछ समझ नहीं आया था कि क्या समझाना चाह रहे क्या नहीं है, बट अब तो मैं इतनी सारी वीडियोस देख चुकी हूँ और मुझे ना बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।